شام کے ہر موڑ پہ سجاد کی مقتل ہے، رونے والوں کے گھروں پہ مالک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بانیان کا آج گئے صف ماتم بچھایا، مالک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تخیر خطیب ولایت، خطیب آل محمد، محقق دوران وقت کی آواز، عزت ماب پیر و مرشد بابا سید ذیشان در نقوی آفشار کوٹ اپنی نماز کا سجدہ ادا کریں گے، اور ان کے بعد ذاکر الاتحاد ذاکر آغا تسیر عباس آف شیخپورہ اپنی نماز کا اگلا سجدہ ادا کریں گے۔ بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعقینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ زحمت محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجھے چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر رہنا، زیادہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار، صف معرفت، صف عرفان، اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے، کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں روا دوا ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اوڑے ہوئے چشمائے بری ہیں، کہ وہ میرے آقا میرے مولا فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت خوبصورت سنیں، سلامت رہیں چاچا نور بلند، جتنے مولا کے عزادار تشریف فرمائیں، بھائی جان ذیشان بھائی، اور جتنے بھی میرے بزرگ تشریف فرمائیں۔ وقت مختصر ہے، اور یہاں پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کا حق تو نہیں کھایا جاتا، چونکہ اگر وقت سے زیادہ پڑ جائیں تو پھر پیچھے والے ذاکر کا حق کھایا جاتا ہے، اور اس منبر پہ کسی کا حق نہیں کھایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہی وہ واحد منبر ہے کہ جس پہ حق کھانے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں اپنے وقت کے اندر پڑھوں گا، اور اچھا ایک لطف والی بات یہ ہے میرے عزیز
शायद मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन जहन में आ गया। सारे ही जाकिर हैं मौला के, सारे जाकिर हैं, हम भी जाकिर हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये होता है कि जो जाकिर है ना, वो मौला के मानने वालों को दो चीजें अता फरमाता है। एक फजाइल आले मोहम्मद सुनाता है, दूसरा मसाइब आले मोहम्मद सुनाता है। लेकिन जो खतीब होता है ना, वो तीन चीजें आप तक पहुंचाता है। एक फजाइल आले मोहम्मद, दूसरा मसाइब आले मोहम्मद, तीसरा शऊर आले मोहम्मद। तो कोशिश किया करें, कोशिश करें कि अगर खतीब का ऐलान भी हो तो आप उसी रूटीन से सुने ताकि बात पहुंच सके। मैं किसी की नफी करने का आदी नहीं। और दूसरी बात यह कि मुझे बानियान ने हुक्म दिया है उन्वान पढ़ने का, और उन्वान मैंने पढ़ना है 15 मिनट। चूँकि 4 बजे मजलिस के अख्ताम के मराहिल होंगे, दूर नज़दीक से अजीज़ तशरीफ़ फरमाएँ, वो 15 मिनट में चाचा नूर मलांग में मुकम्मल उन्वान पढ़ना चाहता हूँ। मुझे हुक्म बानियान है कि हुसैन पढ़े, और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुसैन मुझ जैसा बंदा तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हुसैन पढ़े तो अल्लाह पढ़े। याद हुसैन, थोड़ा सा जागना, हुसैन पढ़े तो अल्लाह पढ़े, हुसैन पढ़े तो मुस्तफ़ा पढ़े, हुसैन पढ़े तो मुर्तज़ा पढ़े, हुसैन पढ़े तो मुज्तबा पढ़े। वरना मुझ जैसी किसी भी गैर मासूम गैर मुतहर्रिक जुबान को ये ज़ेब नहीं देता कि वह हुसैन बादशाह का तारुफ करवाए। लेकिन आज चंद मिसरे पढ़ूंगा, उस मिसरे से जो मेरे उस्ताद मोहतरम के ज़रिए से मुझ तक मार्फत पहुंची है, वो मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ। उसी से मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मार्फत मुझ तक है, मैं उस मार्फत से हुसैन बादशाह का तारुफ आप तक पहुंचा दूँ। कौन हुसैन? याद हुसैन जुमला अगर समझ में आए तो फिर जिसके दिल में दिल नहीं, हुसैन बादशाह की मोहब्बत धड़कती है। भाईजान चाचा नूर मलांग, अगर वो बंदा पीछे रह गया मुझे दुख होगा। कौन हुसैन? जो अपने जख्मों की ताजगीयत से यजीदियत को निढाल कर दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो अपने जख्मों की ताजगीयत से यजीदियत को निढाल कर दे, जो हुर की तौबा कबूल करके शाफी का मकसद बहाल कर दे। मैं अभी मुकम्मल जब पढ़ूंगा ना तो मैं वादा नहीं करूंगा, दावा करूंगा। भाईजान बड़ा खूबसूरत आप इशार पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं। और चूंकि ये शायर जो है ना, शायर अपनी मर्जी से नहीं बनता और अपनी मेहनत से भी नहीं बनता, शायर मौला की मर्जी से बनता। इसलिए मुझे शेर पढ़ना भी पसंद है, शेर पढ़ने वाला भी पसंद है, शेर सुनने वाला भी पसंद है। तो मैं तारुफ करवा दूं, जो अपने जख्मों की ताजगीयत से यजीदियत को निढाल कर दे, जो हुर की तौबा कबूल करके शाफी का मकसद बहाल कर दे, जो मुस्कुराए तो मौत के जर्द जर्द गारस को लाल कर दे, जो अपने हबशी को गुस्ल बख्शे तो बंदगी का जमाल कर दे। हुसैन मेरा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे, हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम। क्या कहना भाई, क्या कहना। बहुत मेहरबानी, सलामत रहें भाई, बहुत शुक्रिया। हुसैन जिसको, बिस्मिल्लाह चाचा, सलामत रहें भाई, आपकी जिंदगी। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। और मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, मैं उस हदीस का ये तो नहीं कह सकता कि किसी बंदे को इल्म नहीं, क्योंकि जो बंदा मजलिस से हुसैन में माँ की गोद में बैठ के आए, वो इन चीजों को माँ की गोद में बैठ के सुनता सुनता जवान हो जाता है। नबियों के सुल्तान ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर आप कहें तो मैं मौला के करम से आपको वो मंजर ना दिखाऊं कि जब नबियों के सुल्तान ने पहली बार ये हदीस कही थी। चाचा नूर मलंग, मैंने ये नहीं कहा कि सुनाऊं, मैं भूला नहीं हूं, मैंने कहा मैं दिखाऊं, क्योंकि अच्छा खतीब वही होता है जो वहां तक ले जाए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वहां तक ले जाऊं। मस्जिद नबी, भाईजान तवज्जो नहीं आज़िब हुसैन, मिंबर तौहीद, तौहीद के मिंबर पे मिंबर का मालिक, बहुत मेहरबानी, जिनके अकीदे बुलंद, सबके अकीदे बुलंद,
मालिक कौन? मुस्तफ़ा। नबियों के सुल्तान मौजूद हैं, खुतबा तौहीद दे रहे हैं। खुतबा तौहीद देते देते अचानक नबियों के सुल्तान खामोश हुए। सामने लाखों का मजमा, सारे मजमे ने देखा कि ये अचानक मुस्तफ़ा खामोश क्यों हुए। जब नबियों के सुल्तान की निगाह की तरफ सारे सहाबा ने देखा तो मंजर यह था कि मुस्तफ़ा बाहर देख रहे थे। मंजर बाहर का क्या था? जब पीछे पलट के सहाबा ने देखा तो नजर आया कि वो था कि जिसने आज तक अल्लाह का दीन हु अकबर कह के बचा रखा। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने हुसैन, और मुअर्रिख ने लिखा है कि चूंकि हुसैन चल रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। इसे मुस्तफ़ा कहते हैं जो खुद अल्लाह का खुतबा देते देते हुसैन की मोहब्बत में खामोश हो जाए। याद है, हुसैन जागो, खामोश हुए हुसैन को देख रहे। अब मुअर्रिख ने लिखा है कि अपने ही अब्बास से हुसैन बादशाह का कदम, वो कहता है लड़खड़ाया, मैं नहीं कहता, क्योंकि जो दीन के कदमों को अपनी तह में मजबूत रखे ना, उसका कदम लड़खड़ाता नहीं है। उसने लिखा कि हुसैन शायद जमीन पे गिरने वाले थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने मिंबर छोड़ा, खुतबा तौहीद छोड़ा। बंदे कहते कहां अली वाजिब है, कहां वाजिब नहीं, अल्लाह जाने। मुस्तफ़ा ने मिंबर छोड़ के तेज कदमों के साथ नबियों के सुल्तान ने गिरते हुए हुसैन को अपनी आगोश में उठा के वापस मिंबर पे आए। बस यही मैंने एक वाकया सुनाना, और उसके बाद हुक्म है जो मुसाहिब का वही मैं पढ़ूं। वापस मिंबर पे आए। मिंबर पे आके कायनात के नबियों के सुल्तान ने सारे सहाबा की तरफ एक बार देखा। सारे के सारे असहाब नबियों के सुल्तान की तरफ देख रहे हैं। नियाज़ हुसैन आप मेरे तरफ देखें तो वहां पे पहुंचेंगे। सारे के सारे सहाबी नबियों के सुल्तान की तरफ देख रहे हैं कि नबियों के सुल्तान ने मोहब्बत का आगाज किया। पता है कैसे मोहब्बत समझाना शुरू की? पहले नबियों के सुल्तान ने अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के मुस्ताक हुसैन का माथा चूमा, फिर रुखसार चूमा, फिर गला चूमा। नियाज़ हुसैन अगर आप हदीस समझ में आए तो फिर हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करना। मैंने कहा पहले कायनात के नबियों के सुल्तान ने हुसैन बादशाह का माथा चूमा, फिर रुखसार चूमा, फिर गला चूमा, और फिर आवाज दे के कहा लोगों सुनो ये मुझ जैसा है। हाय हाय, नियाज़ हुसैन जागना, थोड़ा थोड़ा जा। लोगों सुनो ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। जो हुक्म था बानियान का वो इस जुमले में मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ने जा रहा हूँ। नियाज़ हुसैन और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई बंदा हुसैन बादशाह की मजलिस में भी बैठा हो फिर मेरे जुमले को लाया कर दे। नबियों के सुल्तान ने फरमाया लोगों सुनो ये मुझ जैसा है। मुस्तफ़ा कह रहे थे सुनो ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। लोग सोचते रहे कि जब भी हम नबियों के सुल्तान के सामने आते हैं अगर पास हुसैन आ जाए तो एक ही लफ्ज हमें सुनाते हैं कि लोगों सुनो ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। मुअर्रिख ने लिखा है कि लोग सोचते रहे, वक्त बदल गया। जब लोग सोचते थे कि क्यों कहते थे, पता उस दिन चला जब हुसैन बादशाह ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं। दियो दियो बोलो बोलो सगी सरदार कलंदर। आप मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। इस पूरे इलाके का चुना हुआ मजमा मेरे सामने निस्बतन सैयद हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर, हाथ बांध के आज ना मैं आपके सामने एक इल्तमास करना चाहता। कुछ भी हो जाए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कंप्रोमाइज न करना। ज़िशान भाई, चाचा नूर मलंग,
मेरा भाई, मेरा अजीज भाई जान, ये जो लफ्ज मैंने कहा है ना, ये इसलिए कहा है क्योंकि इस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अली की बेटियों की और हुसैन की बेटियों की बड़ी कुर्बानी है। या से गदा बड़ी कुर्बानी है। मैं पहला मातम सुनाऊं जो हुसैन पे कैसे किया गया था। करीम करबला 11 मुहर्रम का दिन, पहला मातम, हुसैन की 4 साल की बतूल। नाम सकीना। दिन के उजाले में आई तो पहली बार मातम किया। मेरी तरफ देखोगे तो बात समझ में आएगी, जिनके हाथ हैं वो सीने पे आ जाएंगे। अलामा दरबंदी ने लिखा कि पहली बार हुसैन की 4 साल की सकीना के हाथ यूं बांध दिए गए। 11 मुहर्रम, हुसैन की 4 साल की सकीना पहली बार जब अपने बाबे के लाशे को 9 हिस्सों में तकसीम हुआ देखा। आप बड़े आराम से सुन गए हो, मैंने कोशिश की कि बात पहुंच जाए। 9 हिस्सों में हुसैन बादशाह के लाशे को तकसीम हुआ देख के हुसैन की 4 साल की बतूल ने पहला मातम किया। पहला मातम करना था अज़ादारों। उमर इब्न साद, अल्लाह इस पे लानत करे, इसने कहा जल्दी कर, इस बच्ची का जाके मातम रोक। आराम से सुन लो या हाय करके सुन लो। बंदे कहते हैं कि हाय आपके बस में है, आंसू आपके बस में नहीं है। मिंबर आले मोहम्मद है, अलमों का पहरे में खड़ा हूं। हाय भी हर बंदे के बस में नहीं है। हाय भी सिर्फ वही कर सकता है जिससे हुसैन से दिल से मोहब्बत हो। अगर बात समझ में आए तो इतनी ऊंची हाय करना कि मेरी मखदूमा जो पर्दे में तशरीफ फरमा है वो राजी हो जाए। मैंने कहा, इसने कहा था जल्दी कर जाके हुसैन की 4 साल की सकीना का मातम रोक। बताओ इसने कैसे रोका था? जाके इसने पहले हाथ यूं किया, हाथ बुलंद करके सैयदा के चेहरे पर तमाचा लगा के आवाज दे के कहते, मातम बंद करती है या नहीं करती? अजरुक मिनल्लाह या सैयदा, अजरुक मिनल्लाह या सैयदा। मालिक इन आवाजों पे हमेशा रहम फरमाए जो हुसैन बादशाह के गम में बुलंद हो। इसने कहा ये ऐसे मातम नहीं रुकेगा, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, आप हाय कर सको। इसने जो हाथ ऐसे बांधे थे ना भाईजान, मेरी तरफ देखना, जो हाथ ऐसे बांधे थे ना वो ऐसे बांध दिए। गुरबत आले मोहम्मद का इससे बड़ा मेरे पास जुमला कोई नहीं है। ऐसे हाथ बांधने के बाद अलामा दरबंदी ने लिखा है कि इन्होंने जानबूझ के हुसैन की 4 साल की सकीना को उस ऊंट पे बिठाया जिस पे कोई सवारी नहीं करता। अजरुक मिनल्लाह या सैयदा, सलामत रहे। जानबूझ के उस ऊंट पे बिठाया जिस पे कोई सवारी नहीं करता था। उस ऊंट पे बिठा के, अल्लाह करे अब मैं ये जुमला समझा सकूं, उस ऊंट पे बिठाने के बाद बीबी ने आवाज दे के कहा था, पाक मुसाफिर है शाम अली की अली बेटी ने, शिमर हया कर, मेरी 4 साल की सकीना है, मेरे हुसैन की ये सीने का तवील है, इसे यूं तनहा ना बिठा, ये ऊंट से गिर जाएगी। ये आवाज दे के कहता, नहीं मैं ऐसे बिठाऊंगा कि ये गिरेगी नहीं। अब जो मातमी बैठा है वो मातम जरूर करेगा। अली की इज्जत की कसम बताऊं इसने कैसे बिठाया था। अलामा दरबंदी ने कहा है कि जनाबे सकीना को इसने ऊंट पे बिठाने के बाद ना बीबी के पांव में रस्सियां बांधी। रस्सियां बांधने के बाद अल्लाह जाने कौन सा वो बंदा है जो मातम नहीं करेगा। रस्सियां बांधने के बाद अलामा दरबंदी ने लिखा है कि इसने लोहे का ताजियाना लेके, अल्लाह जाने वो ताजियाना ऊंट को लगा था या हुसैन की 4 साल की सकीना को लगा था। सकीना रास्ते में गिर गई थी। या हुसैन, या हुसैन। बीबी ऊंट से जमीन पे आई। अलमा गैर मुअल्लमा पाक मुसाफिर शाम, अली की अली बेटी ने आवाज दे के कहा, शिमर अल्लाह तुझ पे लानत करे, इस सारे ऊंटों को रोक दे। ये आवाज दे के कहते कुछ भी हो अब ऊंट नहीं रुकेंगे। बीबी ने एक इशारा ऊंटों की तरफ किया, थे जानवर, सारे के सारे महमल वहीं पे रुक गए। जब सारे के सारे ऊंट रुके ना, उमर इब्न साद कहते जल्दी कर शिमर, ये ऐसे नहीं चलेगा काफिला।
جا کے جیسے بھی ہو حسین کی 4 سال کی سکینہ کو ڈھونڈ کے لا. میں نے لفظ ڈھونڈ کے کہا ہے، بندوں نے ہائے نہیں کیا. چاچا نور ملنگ تاریخ نے لکھا ہے 6 میل کا فاصلہ تھا. اجرکم من اللہ یا سیدہ. 6 میل کا فاصلہ تھا جہاں پہ حسین کی 4 سال کی سکینہ تھی اور جہاں پہ یہ محملوں کا جتنا بھی قافلہ تھا. یہ تیز گھوڑا لے کے بھگاتا ہوا وہاں آ گیا جہاں پہ حسین کی 4 سال کی سکینہ تھی. بس چھوڑنے والا ہوں، اللہ کرے ہر بندہ سمجھ کے ماتم کرے. بندے کہتے ہیں نا ہم روتے کیوں؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں آپ کیوں روتے ہیں. وہاں پہ گھوڑا لے کے آ کے کہتا ہے کس کے کہنے سے اتری ہے؟ اللہ جانے کون بندہ ہے جو سمجھے. ہاتھ اٹھا کے آواز دے کے کہتے ہیں کس کے کہنے سے اتری ہے؟ حسین کی 4 سال کی سکینہ کہتی کسی کے کہنے سے نہیں اتری، اونٹ سے گر گئی ہوں. آواز دے کے کہتے تیری وجہ سے سارا قافلہ رکا ہے، جلدی کر گھوڑے پہ بیٹھ. مر جاؤں میں غربت آل محمد کا یہ جملہ نہ پڑتا ذیشان. علی کی عزت کی قسم ہے. حسین کی 4 سال کی بطول نے آواز دے کے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں. یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا ہاتھ نہ لگاؤں، خود گھوڑے پہ بیٹھے گی. بی بی نے فرمایا نہیں، تو گھوڑا چلا، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں. جن کے پاس چھوٹی اولاد ہے نا وہ ہائے واجب سمجھ کے کرنا. میری بائیں بہنیں پردے میں تشریف فرمائے وہ مجھے معاف کرنا. 4 سال کی سکینہ، 6 میل کا فاصلہ. بتاؤں اس نے ساتھ کیسے چلایا تھا؟ ساتھ تیز گھوڑا دوڑا رہا تھا، ساتھ حسین کی 4 سال کی سکینہ دوڑ رہی تھی. عزیزانو فطرت کی یہ بات ہے کہ جب بھی کسی بچے کو کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف ہو نا، یا وہ بھائی جان ماں کی طرف جاتی ہے یا اپنے باپ کی طرف جاتی ہے. چاچا نور ملنگ مر جانے والی بات ہے، ماتم والی بات نہیں. علی کی عزت کی قسم ہے. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ 6 میل کا فاصلہ طے کر کے حسین کی 4 سال کی سکینہ جب واپس آئی نا، نہ اپنی ماں کی طرف گئی ہے نہ اپنے بابے کی طرف گئی ہے. بتاؤ کدھر آئی ہے؟ تیز قدموں کے ساتھ چلتی وہاں آ گئی جہاں پہ ایک گھوڑے کی گردن میں علم والے عباس کا سر بندھا ہوا تھا. اب یا خود ماتم کرو یا میرے مر جانے کی دعا کرو. علی کی عزت کی قسم ہے. یہی علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ علم والے عباس کے پاس آ کے 4 سال کی سکینہ آواز دے کے کہتی چچا عباس میرے پیروں کی تلیاں پھٹ گئی. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سہمے ہوئے چھپا لیتی تھی اپنے کانوں کو،